My dear students, welcome to Methodological. In this session, we'll be discussing 3D eye sets from the official mock. We have already discussed all the 36 questions from the official mock that encountered in one set, but there are more than 36 questions in total. So many other students have encountered some different DI sets. So we'll be covering those DI sets in this session as well. Okay, start करते हैं session को. So these are all the questions, total 3 DI sets. Okay, start करते हैं. So the first set is the given graph shows how a particular movie was rated by users of an online movie review website. Each user could vote only once, go through the given graph and answer the questions based on it. Okay, answer the questions based on it. तो user votes है, ratings है हमारी from 1 to 10. Okay, given है 10 to 1, 10, 9, 8 till 1 और votes का number given है हमें, percentage is also given. Question is asking what is the average arithmetic mean rating given by the users. Pause the video, try to solve it और देखो एवरेज कैसे निकालते हो और फिर मैं बताता हूँ कैसे निकालना है एवरेज तुम्हें एक्चुअल में, ताकि तुम्हारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो. ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, in examination like NMAT, since you cannot you can obviously skip the questions, but it is better that you must attempt at least some of the options. ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ये बिल्कुल स्टार्ट में ही आ रहा है तुम्हें और somehow you are taking more time, तो तुम्हारे लिए एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कैलकुलेशन अगर और ज़्यादा टिपिकल हो जाए तो एस्टिमेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज तुम्हें गेस करना है, तो गेस करते समय भी कुछ तो एक्यूरेसी हो. कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ऑप्शन डी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर ऑब्वियसली, बिकॉज एवरेज विल बी बिटवीन 1 and 10, तो ये तो आंसर ऑप्शन हो ही नहीं सकते. ओके, ए बी और सी में से कोई एक आंसर होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरेज विल बी द नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द रेटिंग्स. ओके, सो दैट शुड बी समवेयर इन द मिडल as per the given data. So as per the given data, the data, since data is more towards higher data is for greater than 6 values, ठीक है, so chances are that the our average will be somewhere here, because सबसे ज़्यादा हमारा जो rating है that is for rating 7, highest rating, most of the users have voted for rating 7, isn't it so? So that is why average should be somewhere around 7 or maybe slightly larger than 7. ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 7. क्यों नहीं होगा बहुत ज्यादा लेस देन 7? बिकॉज 7 से नीचे का डेटा देखोगे तो 1.5% हैव रेटेड 1, 1% हैव रेटेड 2, 1.6% हैव रेटेड 3, तो नीचे बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है. दैट इज वाई एवरेज शुड बी समवॉट एट 7 और मे बी स्लाइटली ग्रेटर देन 7. ठीक है, सो ऑप्शन ए शुड ऑल्सो नॉट बी द आंसर एज पर द गिवन डेटा. डेटा चेंज होता, हम फॉर श्योर नहीं कह सकते थे, बट फॉर द गिवन डेटा प्रॉब्ली ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर. ठीक है, सो इफ वी हैड टू मार्क द डेटा, ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन, सो प्रॉब्ली बी और सी इज द आंसर. एंड सिंस बी इज टू मच परफेक्ट, सो प्रॉब्ली द सी इज द आंसर. बट बी भी आंसर हो सकता है, नहीं कह सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते, तो अदरवाइज हम बी और सी में से कोई एक मार्क करते आगे बढ़ जाते. अभी तो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे और देखो कैलकुलेशन हमें कैसे करना है. कैलकुलेशन वी बीन गिवन नंबर ऑफ वोट्स एंड परसेंटेज एज वेल, बट परसेंटेज इज मोर सिंपल टू calculate, so that is why we'll be using percentage and not total number of votes. Additionally, जब भी हम रेटिंग में यूज करेंगे तो we'll start for any average. If calculation is more cumbersome, we'll be assuming one average और accordingly हम deviations से calculate करेंगे अपना total average. Okay, so in this case we'll assume that average is equal to 7 and by deviations we'll be calculating the average. Okay, so if our average is 7, तो 8 is 7 plus 1, 9 is 7 plus 2, 10 is 7 plus 3, 6 is 7 minus 1, 5 minus 2, 4 is 7 minus 3, 3 is 7 minus 4, 2 is 7 minus 5 and 1 is 7 minus 6. Okay, now these deviations को मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेजेस से, रिलेटेड परसेंटेजेस से. ठीक है, सो प्लस 3 इंटू 10, 10% इंटू 3 30% आ गया या 30 आ गया वैल्यू, प्लस 2 इंटू 9.3 18.6, प्लस 1 इंटू 21, सो दिस इज प्लस 21. अब 7 का डेविएशन अपने आप से तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू इज 0, तो ये तो 0 हो गया. 29.1 इंटू 0 दैट इज 0. अब बात करते हैं निगेटिव डेविएशंस का. ये सारे पॉजिटिव डेविएशंस आ गए. निगेटिव डेविएशंस -1 इंटू 16.5 दैट इज -16.5. ओके, यहां पे एक काम करते हैं, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं और अंदर सारी चीजों को ऐड कर लेंगे. सो 2 इंटू 6.9 दैट इज 13.8, प्लस 3 इंटू 3.1 दैट इज 9.3, प्लस 4 इंटू 1.6 6.4, प्लस 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1.5 9. So these are all positive deviations, these are negative. Positive deviations कितना है 30 plus 10 40 50 60 69.6 minus this is 16.5 plus 13 16 13 29
30.3, 39.6, 46 and 46 and 14, 60, तो -60. So this is net deviation हमारा आ गया +9.6, और ये सारे परसेंटेजेस थे, sum of these all is 100%. So you will divide 9.6, हमने assume किया था एवरेज 7 प्लस 9.6 का डेविएशन है आउट ऑफ 100, 9.6 by 100 बिकॉज टोटल 100% है, so by 100 this will be 7.096. this will be perfect answer, ऑप्शन सी. क्या ये अप्रोच क्लियर है? और ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो गलती भी नहीं होगा और साथ में एक्यूरेट आंसर आएगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many users voted? The question is asking how many users voted. Options का given है 100, 709, 85, 851, 93959 and 95390. वोट्स की वैल्यू हमें सारी गिवन है, सबको ऐड कर लोगे आंसर निकाल लोगे. बट क्या हमें वैसा करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑप्शन ए ऑप्शन बी, क्या ये आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं. इतना छोटा वैल्यू कैसे हो सकता है जबकि हमें वोट्स गिवन है सारे के सारे, परसेंटेज को थोड़ी ऐड करोगे. ठीक है, सो ऑप्शन सी, डी एंड ई, इनमें से कोई एक आंसर होगा. और ऑप्शन सी में यूनिट डिजिट 1 है, ऑप्शन डी में 9 है, ऑप्शन ई में 0 है. सब में यूनिट डिजिट डिफरेंट है. सो यूनिट डिजिट इज डिफरेंट, सो ओनली कैलकुलेट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन योर आंसर और अकॉर्डिंगली आंसर मिल जाएगा हमें. ठीक है, सो 9 + 1 0, 10 आ गया, 10 आ गया, 0 आ गया. 0 आते ही तुमको 1 आया 2 आया फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो 9 + 1 10, 2 + 9 11 और 11 + 10 21. 1 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 1 + 9 10, 0 आ गया. 2 + 7 9, 6 15 + 5 0 आ रहा है फाइनली यूनिट डिजिट पे हमारा. तो आंसर भी ऑप्शन ई फॉर श्योर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 95390. आगे किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे डेटा को. क्या ये क्लियर है? ठीक है, 95390 इज टोटल नंबर ऑफ यूजर्स दैट हैव वोटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेटिंग गिवन बाय ऑलमोस्ट हाफ द यूजर्स? रेटिंग गिवन बाय ऑलमोस्ट हाफ द यूजर्स. टोटल यूजर्स कितने हैं? और अभी निकाला था 95390, तो हाफ द यूजर्स विल बी 47,500 रफली. दो ऑप्शंस आर वेरी इजी, 47,500. सो दिस 8 and 7, 29 + 29 + 0.1, 21 + 29.1, 50.1%, यानी कि 7 और 8 विल बी द आंसर क्लियरली. ओके, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question. Exactly 12% of the number of users who gave a rating of 5 or below were below 18 years of age. So how many users who gave a rating of 5 or below were below 18 years of age? Okay, so question is saying exactly 12% of the number of user voters who gave a rating of 5 or below were below 18 years of age. So how many users who gave a rating of 5 or below were below 18 years of age? Okay. So below 5 rating, 5 or below. So these are the values: 6,582, 2,957, 1,526, 954 and 1,431. टोटल कितना आ रहा नंबर? 6 + 2 8,000, 9,000, 9,500 समथिंग, 10,000, 11,000, 12,000, 13,500, 13,400 के आसपास का वैल्यू आ रहा है. माइट बी इवन लेसर. ठीक है, और 12%, एग्जैक्टली 12% ऑफ दीज वोटर्स आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज. तो हमें इसका 12% काउंट करना है. सो दिस विल बी रफली 1500 1600 टाइप्स. ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर क्लियरली, क्योंकि और कोई ऑप्शन उस रेंज में ही नहीं है. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेट. नेक्स्ट सेट इज a table based set. The table shows the expenses in dollars per year of a new startup company ABC Limited, and for 5 years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 we've been given primary expenses and secondary expenses. Primary expenses have 4 components: employee salary, bonus which is percentage of salary, rent and marketing. तो एम्प्लॉई सैलरी, रेंट और मार्केटिंग तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज में दिया है, बट बोनस इज गिवन एज अ परसेंटेज, तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में. और सेकेंडरी एक्सपेंसेस गिवन एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. टोटल एक्सपेंस क्या होगा? टोटल एक्सपेंस विल बी इक्वल टू प्राइमरी एक्सपेंस प्लस सेकेंडरी एक्सपेंस. तो सेकेंडरी एक्सपेंस इज गिवन एज टोटल एक्सपेंस का परसेंटेज. ये बात ध्यान रखना है कैलकुलेट करते समय. दिस इज नॉट परसेंटेज ऑफ प्राइमरी एक्सपेंस. ओके, so question number 1, which of the following is closest to the percentage change in total expense from 2011 to 2012?
परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंस फ्रॉम 2011 टू 2012। 2011 में हमारा प्राइमरी एक्सपेंस क्या है 2011 में? दिस इज 24,000 प्लस 4,300 प्लस 15,500 प्लस 5% ऑफ 24,000। तो 4,300 प्लस 15,500 कितना हुआ? 15 4 19,800, ठीक है, 19,800। तो 24,000 प्लस 5% कितना हो जाएगा? 10% विल बी 2400, 5% 1200, 1200 plus 19,800. So this becomes 21,000 plus 24,000, 45,000, 45,000. Okay, 2011 का एक्सपेंस हो गया टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस नहीं, दिस इज प्राइमरी एक्सपेंस। सेकेंडरी एक्सपेंस क्या आ जाएगा? 25% इज सेकेंडरी एक्सपेंस आउट ऑफ टोटल एक्सपेंस। 25% यानी कि 1/4 है। तो अगर 4 यूनिट्स हमारा टोटल एक्सपेंस है, 1 यूनिट इज सेकेंडरी एक्सपेंस, 3 यूनिट्स इज प्राइमरी एक्सपेंस। यानी कि 75% की वैल्यू हमें गिवन है, 25% सेकेंडरी एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। तो 75% की वैल्यू कितनी है? 45,000, 25% हो जाएगा 1/3 इसका 15,000 एंड टोटल एक्सपेंस विल बी 60,000। सिमिलरली फॉर 2012 प्राइमरी एक्सपेंसेस 25,000 प्लस 4% यानी 1,000, 25K प्लस 1K प्लस 4,500 प्लस 14,500, दिस इज 14 प्लस 4 प्लस 1 19,000। So this is also 45,000. और secondary expense this time is 16.67% of total, which is 1/6 of total. तो 1/6 of total है, यानी कि 6 यूनिट्स अगर टोटल एक्सपेंस है, 1 यूनिट है सेकेंडरी एक्सपेंस, तो प्राइमरी एक्सपेंस होगा 5 यूनिट्स। और 5 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 45,000, तो 5 यूनिट्स 45,000, 1 यूनिट हो जाएगा 9,000। सो टोटल एक्सपेंस विल बी 54,000, 54,000, 60,000 2011 में, 54,000 इन 2012। एंड क्वेश्चन पूछा है चेंज कितना हुआ है? चेंज हुआ है 10% का, डिक्रीज ऑफ 10% हुआ है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज प्राइमरी एक्सपेंस इनकर्ड पर ईयर? एवरेज प्राइमरी एक्सपेंस पूछ रहा है और 2 ईयर्स का तो हम निकाल ही चुके हैं। फॉर 2011-12 दिस इज 45,000 ओनली। 2011-2012 में 45K ही है, सेम इन बोथ ईयर्स। 2013 में दिस इज 30,000 प्लस 5% विल बी 1,500, 1,500 प्लस 4,500 6,000, 36,000 प्लस 14,000 50,000 हो गया। 2014 में 30,000 प्लस 1,800 प्लस 5,200 यानी कि 7,000, 37,000 प्लस 15,000 52,000 हो गया। 2010 में 20,000 प्लस 1,200 प्लस 3,800, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, दिस इज 40,000। तो 40K, 45K, 45K, 50K, 52K, एवरेज एज्यूम कर लेते हैं 45 को, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज हमने एज्यूम कर लिया 45 को। कितना डेविएशन है? -5K फॉर 2010 और 2013 के लिए +5K, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और 2014 के लिए दिस इज +7K। टोटल 7,000 का डेविएशन है, 5 वैल्यूज हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो एवरेज हो जाएगा हमारा 45K प्लस 1.4K यानी 46.4K, 46,400। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द कंबाइंड प्राइमरी एक्सपेंसेस द सेम एज द प्रीवियस ईयर? अब ये तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, 2012 और 11 का सेम है। और क्वेश्चन बट ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज क्या कह रहा है? कंबाइंड प्राइमरी एक्सपेंस सेम एज द प्रीवियस ईयर। सो कौन से ईयर में प्रीवियस ईयर के इक्वल था? 2012 में था, तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ओके, ठीक है, बिकॉज 2011 में 10 के इक्वल नहीं था, 2012 में था ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस इन द ईयर 2010? 2010 में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 40,000 तो आ ही गया था प्राइमरी एक्सपेंस, और सेकेंडरी एक्सपेंस वॉज 20% यानी कि 1/5। तो अगर टोटल 5 यूनिट एक्सपेंस है, 1 यूनिट सेकेंडरी, 4 यूनिट्स हमारा प्राइमरी है। प्राइमरी है 40,000, 4 यूनिट्स की वैल्यू 40,000 है, 1 यूनिट हो जाएगा 10,000, तो 5 यूनिट्स हो जाएगा हमारा 50,000। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, सो इजी सेट था ये वाला। नाउ कॉशियसली करना है इस सेट को और गलती नहीं करना है अपने एंड पे, ठीक है। सो हर एक क्वेश्चन में पॉज करो, पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो और ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन के डेटा को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ 25,000 फैमिलीज वर आस्क्ड अबाउट द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी बाय ऑल चिल्ड्रन एजेड 3 to 18 ईयर्स इन देयर फैमिली। ओके, 25,000 फैमिलीज हैं और देयर वर 45,000 चिल्ड्रन। फैमिलीज हैं 25,000, चिल्ड्रन हैं 45,000 और इन द एज ग्रुप द चिल्ड्रन हु यूज्ड टेक्नोलॉजी वर आस्क्ड हाउ ऑफन दे यूज्ड ईच डिवाइस। सो गो थ्रू द गिवन ग्राफ्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। तो पहला ग्राफ हमारा है बार ग्राफ, ठीक है, फैमिली टेक्नोलॉजी ओनरशिप एंड चाइल्ड यूज। तो व्हाइट में गिवन है हमें फैमिली टेक्नोलॉजी ओनरशिप का परसेंटेज और
द अदर बार इज गिविंग अस द चाइल्ड यूजर्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट ग्राफ में हमें परसेंटेज गिवन है दैट इज फॉर फैमिली ओनरशिप, और डेटा ऑफ फैमिली कितना है 25,000 फैमिलीज है, सो दिस इज परसेंटेज ऑफ 25,000। और सेकंड ग्राफ में हमें दिया है चाइल्ड कितने यूज कर रहे हैं, और चाइल्ड है 45,000, तो ध्यान देना सेकंड वाला जो ग्राफ है वहां पे परसेंटेज हमारा किसका है 45,000 का परसेंटेज है, सो दैट इज अ डिफरेंस। ओके, फिर हमें गिवन है पाई चार्ट्स फॉर चाइल्ड यूज फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डिवाइस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपॉड एंड ई रीडर। ओके, and the key points are daily, weekly and less often inside the pie graph, pie chart. So first question, how many children aged 3 to 18 years use the device which is owned by exactly 11,500 family? Question कह रहा है children aged 3 to 18 years who use the device which is owned by exactly 11,500 families, ठीक है, डिवाइस ओन्ड बाई एक्जैक्टली 11,500 फैमिलीज, और टोटल फैमिलीज है 25,000, तो 11,500 कितना हो जाएगा, हाउ मच परसेंटेज हो जाएगा, 25,000 का 10% इज 2,500, 40% इज 10,000, सो दिस इज 40% प्लस 6%, 46%, ठीक है। तो डिवाइस ओन्ड बाई 46% फैमिलीज, दैट डिवाइस इज टैबलेट, टैबलेट, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट यूज द टैबलेट इज 34%, तो 34% ऑफ 45,000 चिल्ड्रन, ठीक है। 34% किसका निकालना है 45,000 का, आंसर आ जाएगा हमारा 34% कितना है 1/3 के आसपास है, 15,000 प्लस समथिंग, ऑप्शन ई विल बी द आंसर 15,300। ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड डेली बाय एग्जैक्टली 11,934 चिल्ड्रन हु आर एजेड 3 to 18 ईयर्स। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो गलती करोगे पक्का। क्वेश्चन कह रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड डेली, ओके, ये डेली को मिस नहीं कर जाना है बिकॉज डेली का डेटा डिफरेंट है, डेली के लिए हमें डेटा सेपरेटली निकालना पड़ेगा। डेली बाय एग्जैक्टली 11,934 चिल्ड्रन हु आर एजेड 3 to 18 ईयर्स, ओके। सो 11,934 चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन है 45,000, तो रफली कितना परसेंट होगा 11,934 बाई 45,000, या परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड बाई 450 कर दो, ठीक है। 20% कितना होगा 45,000 का 20% विल बी 9,000, 1% है 450, अभी भी कितना बच रहा है 2,934, तो 5% कितना होगा 2,250, यानी 11,250, और अभी भी बच रहा है हमारा रफली 700, ठीक है। 700, 1% इज 450, तो ऑलमोस्ट 1.5% आ रहा है, 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है इनफैक्ट, ठीक है। सो प्लस 1.5% विच विल बी 675, तो आ जाएगा 11,925, तो दिस इज रफली 26.5%, 26.5%, स्लाइटली, वेरी वेरी स्लाइटली हाइयर देन दैट, ठीक है। तो एक एस्टिमेशन हमने ले लिया 26.5% नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे जो कि यूज करते हैं दैट डिवाइस, ओके, क्लियर है। और डेली की बात कर रहा है क्वेश्चन, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो कि कंफर्म्ड है कि ई रीडर तो नहीं हो सकता बिकॉज ई रीडर यूजर्स ही टोटल 11% है, और हमें चाहिए 26 क्या हो रहा है 26.5% डेली यूजर्स, डेली यूजर्स, ओके। तो 11% है ई रीडर के टोटल यूजर्स, तो डेली यूजर्स तो उससे कम ही होंगे, तो ई रीडर आंसर नहीं हो सकता। आईपॉड में 27% है, बट हमें 27% नहीं चाहिए, हमें चाहिए आईपॉड का डेली यूजर कितना है, कहाँ गया, दिस डेली यूजर इज इन वाइट 53%, तो जस्ट हाफ ऑफ दैट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली फॉर टैबलेट 34% है, और डेली यूजर्स कितने हैं टैबलेट के 47% ऑफ 34%, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 47% कितना होगा रफली 17%, 16.5% के आसपास, आंसर नहीं होगा। तो यानी कि दो कंटेंडर्स है हमारे, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ओके। लैपटॉप का डेली यूजर्स कितना है 52% टोटल यूजर्स है, डेली यूजर्स है 51%, तो 51% ऑफ 52%, 51% ऑफ 52%, ओके। और फॉर स्मार्टफोन दिस इज 43% टोटल, और 65% है डेली यूजर्स, तो 65% ऑफ 43%, सो दीज आर क्लोज वैल्यूज है, ठीक है, क्लोज वैल्यूज है हमारी, ओके। तो 65% ऑफ 43% कितना आएगा, दिस विल बी 43% का ऑलमोस्ट 1/3 है, ठीक है, 2/3 है, ऑलमोस्ट 2/3 है, 66.66% से थोड़ा सा कम है, बट बेटर कैलकुलेशन के लिए क्या कर एज्यूम कर सकते हो 43% का 10% कितना है 4.3, 60% कितना होगा, ठीक है, हमारा 50% आ जाएगा 21.50%, फिर 10% आ जाएगा 4.3%, और 5% आ जाएगा
2.15%। तो टोटल बन गया हमारा 4 + 2 6, 21 + 6 27.95%। दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 27.95%, जबकि हमारा जो एस्टिमेशन आ रहा है वो आ रहा है 26.5% से थोड़ा सा ज़्यादा, 52%, 53% या 55% के आसपास। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज मच हाइयर, तो स्मार्टफोन विल नॉट बी द आंसर। एंड इफ दैट इज नॉट द आंसर, बाकी तो पहले एलिमिनेट हो गए थे, तो डेफिनेटली लैपटॉप इज द आंसर। ठीक है, तो या तो स्मार्टफोन का कैलकुलेट कर लिया हमने, वहां से हमने एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया, या फिर लैपटॉप का कैलकुलेट कर लेते 51% और 52%। ओके, 52% का 50% क्या होगा? 50% विल बी 26%, और 1% विल बी 0.52%, 0.52%। तो 26.52% आ गया, और एग्जैक्टली यही तो चाहिए था। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? बट दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम में, एग्जाम कंडीशंस में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन गलत होने का बहुत स्कोप है, बिकॉज डेली विल बी इग्नोर्ड बाय मेनी ऑफ यू फॉर श्योर। एग्जाम प्रेशर में कोई भी डेली वर्ड को मिस कर सकता है, और फिर वहां पे तुम्हारा एरर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। यानी कि अगर डेली वर्ड को मिस कर दिया तो तुम आंसर क्या मार्क कर दोगे फिर? 27% के आसपास का, यानी कि आईपॉड मार्क कर दोगे, और दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between number of children aged 3 to 18 years who use the smartphone weekly and number of children aged 3 to 18 years who use the e-reader weekly? तो हमें वीकली डेटा पे फोकस करना है फॉर स्मार्टफोन एंड ई रीडर, उनका डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए ऑफ स्मार्टफोन एंड ई रीडर। स्मार्टफोन यूजर्स है हमारे 43%, एंड वीकली यूजर्स कितने हैं स्मार्टफोन के? वीकली इज 29%, 29% और 43% फॉर स्मार्टफोन, एंड फॉर ई रीडर टोटल यूजर्स है 11%, और वीकली यूजर्स है फॉर ई रीडर 55%, यानी कि 55% ऑफ 11%। और डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो पहले वाले डेटा में रफली कितना परसेंट है? 43%, 29%। 43% का 30% कितना होगा? 12.9% होगा, 12.9% होगा। ठीक है, 43 इंटू 3/10 या 30/100। ठीक है, सो दैट इज 12.9%, और 1% और सब्ट्रैक्ट करना है, 12.9 एज्यूम कर लो, और या फिर 1% और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 12.47%। डिपेंड्स ऑन एग्जैक्ट एक्यूरेसी। हमें 12.9% से भी आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? बिकॉज हमें जो ऑप्शंस गिवन है 2889, 4500, 5612, 6423, 8334, बहुत डिफरेंस है उनके बीच में। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, इजंट इट सो? क्योंकि 1% भी हमारा 45,000 का कितना है? दैट इज 450, और गैप हमारा डेफिनेटली उससे ज्यादा है सारे केसेस में। गैप हमारा एटलीस्ट 2% का तो है, ये 2 to 2.5% का गैप हर जगह पे है। सो तुम्हारा एस्टिमेशन बहुत एक्यूरेट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। सेकंड केस में 55% ऑफ 11%, 11% का 50% होगा 5.5 प्लस 0.55, यानी कि 6.05%। So the difference comes out to be 12.47 minus 6.05, that is 6.42% of 45,000। तो 1% हमारा है 450, 450 into 6 will be 2700, तो 2889 के आसपास का वैल्यू आएगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the ratio of total number of children who use the laptop less often to the total number of children who use the e-reader less often? तो लैपटॉप लेस ऑफन एंड ई-रीडर लेस ऑफन का रेशियो क्या है? लैपटॉप यूजर्स आर 52% एंड लेस ऑफन यूजर्स ऑफ लैपटॉप आर 6%। तो 6% ऑफ 52%, एंड ई-रीडर लेस ऑफन, ई-रीडर यूजर्स आर 11%, लेस ऑफन यूजर्स ऑफ ई-रीडर आर 13%। तो 13% ऑफ 11%, और यहाँ रेशियो चाहिए तो बस सीधे सीधे रेशियो निकाल लो। ठीक है, 13 4 आर 52, 4 बच गया यहाँ पे, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। 6 into 4, 24:11। दिस विल बी द रेशियो, ऑप्शन ई। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है? ठीक है, सो आंसर विल बी 24:11। इज दैट पार्ट क्लियर? सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड सेट, एंड दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन इसके समझ में आएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ठीक है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम चैनल, मैथोलॉजिकल पे कनेक्ट कर सकते हो, और यू कैन मैसेज मी एट द टेलीग्राम ID ADITYAKT। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल
And if you have not already subscribed to the channel, then you can subscribe to the YouTube channel as well. That is all from my side in this session. Bye bye, take care, and keep learning.